अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें बिल्कुल सही यार। आज हम लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो यूएस से, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एट अ पेस दैट यूएस कैन नेवर एडवांस, at least this boy seems to think so. The important part is I want to share one of my experiences. I went to a government office, I think last to last month in Delhi, and over there what happened was they made me wait first all day. I was not able to work, not able to go to the office. I had some meetings, I had to postpone them. After waiting all day, they tell me, sorry, it won't happen over here. You have to visit that other office. And if you want to do it over here, it's possible, but you have to give us some vitamin M. Vitamin M is nothing but the bribe that India basically survives on as of today. It's supposed to be growing at an enormous pace. It's the best country of all. हम लोग दूसरों से पूछते हैं कि अब आप कौन हो यूएस, हम तो बहुत आगे हैं आपसे. But then still, we're not able to get through this bribery. On top of that, government officers ask you इतने खुल करके, मतलब कि they don't have any fear of anything. There's agencies that you can report it to, but they don't care. In fact, if you tell them that we're going to report you, they start being hostile. In 2019, I finished my bachelor's. I came to the US. I went to USC. And, my story is different. I dropped out later on for my business and everything. But all the friends that I had that went to the US or anywhere overseas, by the way, not only the US, can be Australia, can be UK. Most of them are there. Especially the US, not even a single person has returned. They stay here, they don't go back. Why? I don't understand. India is supposed to be so good. According to this boy, India is the best country of them all. And we ask the US, who the fuck are you, essentially? And you know what? This was happening in 2019 as well. Back then, Trump administration was active. And people were telling me, this is not a good time to go to the US. Don't go. Because immigration is hard right now. They have all kinds of laws. I don't know. It's just not going to be worth it. But then we went. And not a single person has returned till now. After that, Biden came and Trump administration is back in office. Even then, these people want to stay right here in the US. I'll give you a couple more examples. Take a look at this one. In this clip, an influencer, a person who's supposed to be a role model for the society, essentially, goes ahead in an airplane. And in the airplane, what this person is doing is that he's going ahead and playing loud music. I mean, this is something that we don't even do that in our metros. But this person wants to do it in the airplane. And it just feels bad when you see a fellow Indian, an educated Indian doing this, it just feels really bad. Because it creates a bad picture of us in the society. We are the number one people when it comes to breaking queues, entering in the middle, because we are so selfish, we can't wait. I've seen people in the US over here wait for sometimes 1 hour just to get their food. Even though they are waiting at the restaurant themselves, it's not their servant who goes for them and waits, they wait themselves. Yet they have that patience to not break the line. Then, so many times if you see people in India, they would be driving on the street, throwing food out of the car. This is all a part of civic sense. In fact, one of the biggest festivals we had, the Mahakumbh, the changing rooms that were provided over there, people were going ahead over there and defecating in there just because they didn't want to walk to the toilets. Oh, that's the civic sense we have, where we care about ourselves and we don't give a shit about what's happening to the people around us. पूरा पंजाब कनाडा ही चले जा रहा है, ऐसे लग रहा है ऊपर से, और वहाँ पर जा करके उसको पंजाब ही बना दिया है. कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनको हमने ऑलमोस्ट हड़प ही लिया है. वहाँ पर जा करके रोज रात को ऐसे डांस चल रहा होता है, उधर भांगड़ा पा रहे होते हैं लोग उधर. यार ठीक है, मतलब अच्छा है आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट एटलीस्ट इट्स ऑन द स्ट्रीट. और ये चीज़ हम उनकी कंट्री का इतना टेक ओवर कर चुके हैं कि लोग पसंद नहीं करते हैं आज की डेट में वहाँ पर सिख लोगों को, और इंडियंस को नहीं पसंद करते. And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? रिक्शास जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है, वो रिक्शा चला रहे हैं कनाडा में जाकर के. मिसोजिनी इतनी है कि मतलब हम लोग बाहर भी जाते हैं कहीं पर तो अपना नाम खराब करके जरूर आते हैं. वीडियो में भी हम ऐसे दिखाते हैं. मतलब आप देखिए इस वीडियो को. ये बेचारे खड़े खड़े देखते रहे. आजा
आजा यहाँ बैठ जा फोटो खिंचवा रही है क्या आदमी खड़ो आप मुझे बताएं कि आपको कैसे नहीं समझ आता कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। इससे मतलब एक हॉस्टाइल एटीट्यूड क्रिएट होता है हमारे अगेंस्ट, सारे इंडियंस के अगेंस्ट, एक के नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये लेडी कभी भी सेफ फील करेगी किसी इंडियन के सामने रात को अगर उसको चलते हुए दिख गया तो। पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी आज की डेट में कहा जा रहा है जिसको। इट्स एट द टॉप ऑफ द बिलबोर्ड। मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हमारे इंडिया में अब कोई इन्फ्लुएंसर अगर आते हैं और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं विद नितिन कामत, जो कि अभी उनके इंटरव्यू में हुआ एक ब्रायन जॉनसन नाम के आदमी के साथ, जो कि अपना लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अपना लंबी लाइफ जीना चाहते हैं बेसिकली। वो बहुत कुछ करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। वो अपना इंटरव्यू में भी बेसिकली एयर प्योरीफायर लेकर के आए थे, अपना रूम में रखा था इंटरव्यू जब चल रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको इंटरव्यू बीच में छोड़ करके दे हैड टू लीव द इंटरव्यू इन द मिडल। एंड द रीज़न इज़ कि इतनी इम्प्योरिटी है हवा में बेसिकली कि वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग गई, आइज़ और थ्रोट में उनके बर्निंग शुरू हो गया था और साथ में उनकी स्किन पे रैशेज़ आने लग गए थे। हम लोग तो यहाँ पे इंडिया की हवा में इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडीज़ को आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। बट इन द लॉन्ग रन जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो भी हमें ही होने वाली हैं। उसके ऊपर से वी पे अबाउट 30-35% टैक्स आफ्टर फ्लाइंग ऑल दिस सेस एंड एवरीथिंग। और उसका हमें मिलता क्या है? कोई भी रिटर्न ही नहीं है। जो भी सारा टैक्स का पैसा है दैट ईदर गोज़ इनटू द पॉकेट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द पुअर, कि आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, फ्री में पानी मिल जाएगा, फ्री में बिजली मिल जाएगा। फॉर द मिडल टू अपर क्लास कुछ है ही नहीं। जो रोड्स हैं उनकी हालत ख़राब है। यहाँ की रोड्स आप देखेंगे तो इस पे लोग स्केट बोर्डिंग करते हैं। हम अपने इंडिया में स्केट बोर्डिंग नहीं कर सकते, फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि 2 मिनट में आप गिर जाओगे। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसी है, कोई जाना नहीं चाहता उसमें। जाने से मतलब लोग डरते हैं ऑलमोस्ट। उन बच्चों को ऐसा डराया जाता है बोल कर के कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो ओवर क्राउडेड है, उसमें जाओ तो छोटे-मोटी चीज़ का तो इलाज मिलता नहीं है और बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं वो भी बेसिकली हम लोगों को अगर जाना हो तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रेफ़र करते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस कर रही है जो हमारे लिए शायद से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी है। जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि रणवीर अलावारिया जी, इनके पीछे पड़ी हुई हैं और इनको देख रहे हैं कि किस तरीके से यार इन्होंने कुछ शो में बोल दिया है जो कि इन्हें पसंद नहीं आया गवर्नमेंट को, तो इन पे केस फाइल हो गए 31। पता नहीं कैसे चल रहा है यार। जब भी वोटिंग की बात आती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का डाइवर्जन बन जाता है, एससी एसटी का डाइवर्जन बनता है कि भाई उन लोगों को एक्स्ट्रा ये फैसिलिटी मिलेगी। हमारा मतलब एक जो वो जनरल क्लास है उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है हाथ में। यहाँ तक कि जॉब्स भी रिजर्व्ड रहती हैं एससी एसटी क्लासेस के लिए। स्किल को नहीं देखा जाएगा बट रिजर्वेशन को देखा जाएगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये हमने पढ़ा है, शायद से हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हमारे दादा परदादा भी पढ़ चुके हैं सेम चीज़। बट डेवलपिंग ही होए जा रही है, कभी डेवलप हो ही नहीं पा रही है। हर साल आपको कोई ना कोई 1-2 यूट्यूबर दिखेंगे जो वीडियो डाल देते हैं, डोंट कम टू द यूएसए दिस ईयर, क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। आप इंडिया में देखेंगे तो हालत बहुत अच्छी उससे कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन वो अपने व्यूज़ के लिए, अपने पैसे के लिए वीडियो बना देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस लर्न समथिंग व्हिच इज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं यार, अगर आप बेसिकली एक ट्रेंड सेटर हैं, इफ़ यू वांट टू एसेंशियली पुश, जब तक आपको बेसिकली सक्सेसफुल आउटकम नहीं मिलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। यूएस और यूएस जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर आपने जितने भी लोग देखे होंगे अपने फैमिली में, इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता है। सबकी नीड होती है कि यार यहाँ पर हमारी फैमिली है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एज ज़्यादा हो गई है, स्किल नहीं है। नीड है यार, जिसके पास नीड नहीं होती ना और जिसका वांट होता है, जिसके पास स्किल होता है, वो चले जाता है छोड़ करके। और अगर आप जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आप गलती करते हैं, इस वजह से फिर आप जा कर के वीडियो बनाते हैं, डोंट कम टू द यूएसए। मैं आपको बताता हूँ ये क्या गलतियाँ हैं। पहली तो ये है कि आप बैड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यू गो टू अ यूनिवर्सिटी दैट्स टियर 3, वहाँ पर जाकर के जॉब मिलना नहीं है बट आप ज़बरदस्ती चले जाएँगे बिकॉज़ काउंसलर ने आपको भेज दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अपना रिसर्च करके जाओ यार, बिकॉज़ दिस इज़ हेविली रिस्की व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर, गोइंग टू बैड यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट सेइंग यू विल नेवर गेट अ जॉब, सम पीपल स्टिल माइट, बट दैट्स अ स्ट्रोक ऑफ लक। आपको फोकस करना पड़ेगा स्किल गेन करने पे और नेटवर्किंग करने में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जिनको यूज़ करके यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा और किसी चीज़ से शायद से नहीं मिलेगा। मैं अपने रूममेट की आपको स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि बेसिकली दिन में 2 घंटे नेटवर्किंग पे स्पेंड करते थे, लिंक्डइन पे 2 घंटे और 2 घंटे बाहर। मतलब कि यूनिवर्सिटी कैंपस पे बस इधर-उधर घूमते हुए किसी से नेटवर्किंग करते रहे, किससे भी बात कर ली। ऐसे जो नेटवर्क बनाया ना उनके पास मतलब यूनिवर्सिटी खत्म होने पे 4 से 5 ऑफ़र थे और उस टाइम पर मतलब चलो ठीक है फिर भी ऑफ़र ज़्यादा होते थे, आज तो वो भी नहीं होते हैं। बट आज भी आदमी के पास 2-3 ऑफ़र रहते हैं जब भी मैं कॉल करके पूछता हूँ तो। और अगर आप लोन ले रहे हैं देन यू शुड बी एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जस्ट लाइक आप किसी गलत स्टॉक में, गलत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने अंदर भी गलत यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
रिमेंबर दैट दिस वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पर यार हम लोग खाना खाते हैं एक बार में 1000-2000 रुपये तो ऐसे ही एक लंच के ही खत्म हो जाते हैं यार। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्लेस बट इट हैज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑल्सो। दे हैव अ लॉट ऑफ बाइंग पावर एंड दे कैन हेल्प यू गेट दैट बाइंग पावर। देखा जाए तो यूएसए ने चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीप सीक बनाया, हमने क्या बनाया? हमारे कुछ बनाने की बात आए, इससे पहले सैम ऑल्टमैन उठ करके इंटरव्यू में ये बोल देते हैं कि हम लोगों को कुछ बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये होपलेस है। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. You see, starting up in India is very difficult. I'll tell you that based on my experience because I run a startup in India. एक क्रैब मेंटालिटी है कि लोग आपको ना नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें दिखेगा आप अच्छा कर रहे हो तो आपका कंपटीशन होगा बाद में जाकर के आपके अगेंस्ट खराब रिव्यूज डाल देगा। जबकि ये एक इंटेग्रिटी वाली बात होती है। लोग आपके ऊपर पुलिस में जाकर के केस फाइल कर देंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जस्ट बिकॉज आपने कुछ यूट्यूब पे बोल दिया उनको पसंद नहीं आया, वो केस फाइल कर रहे हैं आपके ऊपर। यहाँ पर स्कैम्स इतने हैं हमारी कंट्री में कि साला पता ही नहीं होता है कि जिस पे बात कर रहे हैं, जिस पे एक बिजनेस में ट्रस्ट होता है एक दूसरे से, वो स्कैम है या रियलिस्टिक है कुछ नहीं पता है। और ऊपर से गवर्नमेंट विल आल्सो कॉज इश्यूज फॉर यू। गवर्नमेंट ही डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है, आपको कोई ना कोई चीज़ में फंसा देंगे इधर उधर, या ये आपने टैक्स दे दिया वो नहीं किया, जबकि आपने सब कुछ दे रखा है। और फिर उसके बाद जो सही चीज़ है उसको सही करने के लिए वो बेसिकली आपसे ब्राइब मांगेंगे। सही चीज़ को भी सही करा जाता है। माई रिक्वेस्ट टू यू इज सिंपल, इफ़ यू आर केपेबल और आप अपॉर्चुनिटी लेना जानते हैं, लीजिए एंड गो टू द यूएस और गो एनीवेयर यू वांट टू गो, बट डोंट स्टिक इन इंडिया। It's not worth it. Every year, every minute of your life is precious. Don't try to waste your time. Build the country which doesn't want to grow. आप उस कंट्री को ग्रो करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर रह करके क्यों नहीं करते। ये चीज़ जो कंट्री आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, आपको अलाउ नहीं कर रही है खुद ही ग्रो करने के लिए। और जब आप नहीं ग्रो करोगे तो कंट्री कैसे ग्रो करेगी यार। आप अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपने फ्यूचर को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बिकॉज जो गवर्नमेंट है अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त। और कमेंट्स में लिख तो देंगे 2-4 लोग ज़रूर ऐसी चीज़ कि नहीं हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर रह करके करोगे, बट आप करके तो देखिए। हमने एक्सपीरियंस किया है तो बता रहे हैं। देयर इज़ ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़, हमेशा आदमी को डर के रहना पड़ता है। मतलब चाहे गलती करी हो ना करी हो, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और ये चीज़ जो है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। नाउ आई वांट यू टू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। आई नो मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से ले रहा हूँ और शायद से ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद ना आए, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट I want you guys to let me know your thought. I want to see it in the comments. I want to know about it. And let's have a discussion, you and I.